Praise the Lord Church. I want to welcome you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. हम आपका स्वागत करना चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम आपको आशीषित करते हैं. It's blessing to dwell in the house of the Lord. Amen. ये एक आशीष है जो हम प्रभु यीशु के उपस्थिति में आ सकते हैं और उनका सेवा कर सकते हैं. Okay, we can worship Him in the name of the Lord. I just want to read to you from something that the Lord has put in my heart and the Lord has blessed me with this week. मैं आपसे कुछ बांटना चाहती हूँ जो प्रभु यीशु ने मुझे आशीषित किया है प्रभु के वचन के द्वारा. It is from Proverbs 3 verses 5 and 6. नीति वचन तीसरा अध्याय 5 और 6 से है. It says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Amen. नीति वचन तीसरा अध्याय 5 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. Amen. And the next verse, okay, is what I was searching for. Okay, I was searching for direction. I was seeking His counsel. Okay, and I really wanted the Lord to hear the Lord's voice. Okay, in so many aspects of my life. Okay, but there was a certain aspect where I really was desperate to hear His voice. Okay, and sometimes I know that even you are in that situation. Okay, और मैं जानती हूँ कि कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि हम प्रभु यीशु का आवाज़ सुनना चाहते हैं, यीशु का दिशा देखना चाहते हैं, हम यीशु के मार्ग पे चलना चाहते हैं. ओके, और we become so desperate. Okay, and the more we seek, sometimes the more we feel like we can't hear. और जितना हम ज़्यादा सुनना चाहते हैं कभी कभी उतना ही हम दूर लगते हैं प्रभु यीशु से. ओके, एंड if you know what I'm talking about, okay, this next verse is for you. अगर आप जानते हो मैं क्या बात कर रही हूँ तो ये अगला वचन आपके लिए. Okay, it says, in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Amen. Such a direct word to me when I was searching direction in my life. Okay, प्रभु यीशु का वचन कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. Amen. प्रभु यीशु कहता है कि उसी को स्मरण करना, प्रभु यीशु को स्वीकारना, प्रभु यीशु का यीशु की आत्मा को स्वीकारना. ओके, और प्रभु यीशु का स्मरण करके सब काम करना. ओके, एक्नॉलेज हिम, not just on Sundays, not just on when you feel like praying. Okay, not just when it's okay for you, when you feel like praying. Okay, फिर सिर्फ तभी नहीं जब आपको प्रार्थना करना है, पर प्रभु यीशु का स्मरण हर परिस्थिति में करना है हमें. ओके, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. Amen. I just feel like, like the sheep. Jesus refers to us more than 200 times in the Bible as sheep. Okay, and if you observe the life of a sheep closely, okay, you see that they are literally helpless without the shepherd. And Jesus says that you don't have to worry about anything. You don't have to be overwhelmed with the challenges in your life, with the things that are going in your life. Okay, because He is there and He will direct our paths. All we have to do is lean on Him. Okay, lean on our very foundation. Okay, the one that gives us breath. Okay, to breathe. प्रभु यीशु हमें सिर्फ यही कहता है कि आपका जो भी परिस्थिति है, जो भी तकलीफ है, ओके, बस प्रभु यीशु पे विश्वास रखना है और उन्हें स्मरण करना है, उन पे विश्वास रखना है. ओके, और प्रभु यीशु हमें मार्ग दिखाएगा. Amen. Okay, this is something that the Lord, I felt like the Lord speak to me and I just wanted to share with you. मैं बस यही आपको बांटना चाहती हूँ और आपको आशीषित करना चाहती हूँ. Without further ado, let's get into the service. We have the worship today by Rohit and Wilson, followed by Bread and Wine by Ruby and Bharat, and the word by our very own Pastor Roy. Once again, I want to welcome you in the name of Jesus. आपका स्वागत करना चाहती हूँ to New Life Movement International. God bless.
Thank you, Jesus. Lord, we thank you, Lord, for this day, Lord. Lord, we thank you, Lord Jesus, for your presence, Lord, amongst us. Lord, as we worship you, Lord Jesus, help us, Lord Jesus, to come closer to you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Make all this pray in Jesus' mighty name. Amen. सुनो जरा आवाज जो भी जो बह रही है स्वर्ग से हमारी ही दिशा में। ओ सुनो जरा आवाज जो भी जो बह रही है स्वर्ग से हमारी ही दिशा में। ओ सुनो जरा आवाज जो भी जो बह रही है स्वर्ग से हमारी ही दिशा में। ओ सुनो जरा आवाज झरनों की जो बह रही है स्वर्ग से हमारी ही दिशा में। पवित्र 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 तू है, पवित्र 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 तू है, पवित्र 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 तू है, पवित्र 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 झुक रहे हैं सारे फरिश्ते, झुक रहे हैं सारा ईश्वर, झुक रहे हैं सारे फरिश्ते, झुक रहे हैं सारा ईश्वर। सुनो जरा आवाज जो बह रहे स्वर्ग से हमारी दिशा में। ओ सुनो जरा आवाज झरनों की जो बह रहे स्वर्ग से हमारी दिशा में। ओ सुनो जरा आवाज झरनों की जो बह रहे स्वर्ग से हमारी दिशा में। पवित्र 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 तू है, पवित्र 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 तू है, पवित्र 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 झुक रहे हैं सारे फरिश्ते, झुक रहे हैं सारा ईश्वर, झुक रहे हैं सारे फरिश्ते, झुक रहे हैं सारा ईश्वर। सुनो जरा आवाज जो बह रहे स्वर्ग से हमारी दिशा में। ओ सुनो जरा आवाज जो बह
lift your name on high. Lord, I love to sing your praise. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save me. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से उस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा,
and the honor. Lord, we lift our hands in worship. You lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. कि तू है महान, तू कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, तू कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु की स्तुति हो कलीसिया। इस सुबह मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आए जैसे हम प्रभु भोज में भाग लेंगे अभी, उसके पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे। आए हम पढ़े मत्ती 26 का 26 से लेके 28 तक। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेले को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आए हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे हमने इस वचनों को देखा मत्ती 26 का 26 से लेके 28 तक। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। पिता, हम प्रभु भोज के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, जैसे ये रोटी और ये प्याला यीशु मसीह के शरीर और लहू का प्रतीक है, हम धन्यवाद करते हैं इसके लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और परमेश्वर जैसे हम इसमें भाग लेते हैं तो हमें सहायता कर, पूरे आदर से, पूरे सम्मान से परमेश्वर तुझे स्मरण करते हुए हम इसमें भाग लें। पिता, हमसे जो भी गलती या पाप जानबूझकर अनजाने में होता है पिता, तो उसके लिए हमें क्षमा कर। और हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Good morning, church. शुभप्रभात कलीसिया। We are happy to be with you again. हम खुश हैं आपके साथ फिर से मुलाकात हो रही है।
Today I'm going to read from Luke 5, 1 to 11, and sister will read in Hindi. I'll read in English. One occasion, Jesus was preaching to the crowd at the shores of the Lake Galilee. There was a vast multitude of people pushing to get close to Jesus to hear the word of God. He noticed two fishing boats on the water edge, with fishermen nearby rinsing their net. Jesus climbed into the boat belonging to Simon Peter and asked him, "Let me use your boat, push it off a short distance away from the shore so I can speak to the crowd." Jesus sat down and taught the people from the boat. When he finished, he said to Peter, "Now row up into the deep and cast your net, and you will catch a great catch." Master, Peter replied, "We have just come back from fishing all night and didn't catch a thing. But if you insist, we'll go out again and let down our net because of your word." When they pulled up the net, they were shocked to see a huge catch of fish, so much that the net were ready to burst. They waved to the business partners on the boat for help. Then they ended up completely filling both boats until their boat began to sink. When Simon saw this astonishing miracle, he knelt down at Jesus' feet and begged him and said, "Go away from me, Master. I am a sinful man." So Simon, Peter, and the other fishermen, including his fishing partners Jacob and John, the sons of Zebedee, were awestruck over the miracle of the catch of fish. Jesus answered, "Do not yield to your fear, Simon Peter. From now on, you will catch men for salvation." And pulling their boats to the shore, they left everything and followed Jesus. Amen. लूका का 5 उसका 1 से 11 पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका था, तो शिमोन से कहा, "गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो।" शिमोन ने उसको उत्तर दिया, "हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा।" जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, "हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ।" क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, "मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा।" और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। Wow, what a passage of scripture. वाओ, कितना अद्भुत ये वचन है। I want to read a promise before we go on to the exposition of this passage. 2 Peter chapter 1 verse 2 to 4. और आगे बढ़ने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। 2 पतरस Chapter 1 verse 2 to 4. उसका एक अध्याय और 2 से 4। Read.
परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। Amen. आमीन। It says, grace and peace be multiplied in the knowledge of God. और वहां पर दिया गया है कि अनुग्रह और शांति परमेश्वर के ज्ञान में, प्रभु यीशु के ज्ञान में बढ़ता जाए। Amen. The knowledge of God is so important. और प्रभु का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। Amen. आमीन। And the promises in the knowledge of God make us partakers of His divine nature. और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, उसका ज्ञान से हम परमेश्वर के स्वभाव में सहभागिता लेते हैं। So my topic this morning is, do not give up. Christ is your source. और आज का जो शीर्षक है, हार नहीं मानना, प्रभु यीशु क्रिस्त हमारा सोता है। This is for each one of you. Do not give up. Christ is your source. और ये हर एक के लिए, आपके लिए है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सोता है। Hallelujah. हालेलुया। So I want to start with a word which I'll be using again and again today. और मैं एक शब्द बार बार दोहराऊंगा। That is, the word is called unprecedented. और वो शब्द है न समझना, न सोचा हुआ, पूर्व बातें कभी नहीं हुआ ये शब्द है। What we have not seen, heard or experienced before. जो हमने कभी देखा है, न हमें सुना है, न हमने कभी अनुभव किया है। This word is used a lot these days. और ये दिनों में ये शब्द बहुत बार बोला गया है। Unprecedented. जो कभी सोचा नहीं है पहले ऐसा शब्द। This pandemic, what we are going through is such a situation. और ये पैंडेमिक जो विश्व भर जो बीमारी है उसके बारे में, This is brought fear, terror, atmosphere of negativity in our lives. और ये सब चीजें हमारे अंदर डर, घबराहट और आशाहीन बातें लेकर आती हैं, नकारात्मक बातें लेके आती हैं। No one ever thought we'll be wearing mask before going out anywhere. और कभी किसी ने नहीं सोचा कि हम मास्क पहनेंगे बाहर जाने के पहले। We'll be washing our hands many times a day. और बहुत बार हम हमारे हाथ को धोएंगे। We'll keep distance from one another. और हम एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी रखेंगे। Churches will be closed. और वहाँ कलीसिया बंद होंगे। Other places, marketplaces will be closed. और बाजार जो है वहाँ पर सब बंद होगा। Railways will be closed. और हम देखते हैं रेलगाड़ियाँ भी बंद होंगी। How many expected this to happen? कितने जन ने अपेक्षा किया कि ऐसा होगा? We had no knowledge of this. हमें इसका ज्ञान नहीं था। First time after a long time it has happened. और पहली बार इतने सालों के बाद हमने इसको अनुभव किया है। It made us think, where is God? Where is the church? और वो ये सोच विचार आया कि परमेश्वर कहाँ है, कहाँ हमारी कलीसिया है, What is happening to us? क्या हो रहा है हमारे जीवन में? Are there any answers? क्या हमारे पास इसका उत्तर है? Is the church any answers? क्या कलीसिया के पास इसका उत्तर है? No. नहीं। Even now these trials are on for a vaccine. और अभी भी वो वैक्सीन तैयार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। All our high tech and wisdom is been put to naught. और सारी जो ज्ञान, बड़ी बड़ी ज्ञान जो है, समझ जो है, वो सब वो नकार गया है, कुछ A भी नहीं हो रहा small है। invisible virus has shaken up
lives everywhere. और वो जो जंतु छोटा सा जो दिख नहीं रहा है वो सारे लोगों का जान ले रहा है। It disrupted life not only mentally but even economically. और हम देखते हैं कि ये सिर्फ शारीरिक रीति से नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि हमारे आर्थिक स्थिति में भी तकलीफ हो रहा है। He talks about failure, disappointment, hopelessness. और यहाँ पर जो हार हम महसूस करते हैं और आशाहीन, निराशापन, वो बातें हो रही है। And the story which we read about from Luke 5, और वो जो कहानी हमने लूका 5 से पढ़ा है, he talks about Peter. वहाँ पर पतरस के बारे में बताया गया है। Whole night he is working. वो पूरी रात उसने मेहनत की, He caught nothing. लेकिन कुछ भी नहीं उसने पकड़ा। It was an unprecedented circumstance. और वो ऐसा कभी सोचा नहीं, ऐसा परिस्थिति उसने देखा। He is skilled fisherman, Peter, catching nothing at all. और वो पतरस ऐसा था कि बहुत ज्ञानी था मच्छी पकड़ने में, लेकिन उसने कुछ नहीं पकड़ा। He is washing the net all night after working all night. और हम देखते हैं कि सारी रात मेहनत करके वो अपने जाल को धो रहा था। And Jesus was preaching nearby and there were crowds after crowds. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पास में वचन दे रहा था और वहां पर भीड़ की भीड़ इकट्ठी हुई थी। And he took Peter's net, boat, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने पतरस का नाव ले लिया and he started preaching the word of God from the boat. और वहां पर नाव से उन्होंने प्रचार करने शुरू किया। And Peter was the thought, Jesus wants my boat, he is not concerned about my business. और पतरस ने शायद सोचा होगा कि प्रभु यीशु को मेरे नाव चाहिए, लेकिन मेरा जो व्यवसाय है उसके बारे में नहीं सोच रहा है। And Peter was wondering, what will you tell your family today? There is no fish at all. और पतरस सोच रहा था कि कोई भी मच्छी नहीं पकड़ा है, मैं परिवार को क्या दूंगा। So it was an unprecedented circumstances. तो हम देखते हैं कि कभी पूर्व में ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा वो कार्य हुआ था। You know, there were stories in the Old Testament. आप जानते हैं कि पुराने करार में बहुत सारी कहानियां हैं, The great men of God like Joseph and Daniel. और महान परमेश्वर के जन हैं जैसे यूसुफ और डैनियल। Joseph saved a whole country, Egypt, and his own family from famine. तो हम देखते हैं यूसुफ ने तो पूरा मिस्र देश को बचाया और अपने परिवार और राष्ट्र को बचाया Just to अकाल wisdom से। and dreams of the Pharaoh. और सिर्फ उसने वो जो फिरौन का सपने को उसका अर्थ बताने से कार्य हुआ And the whole country was saved. और सारा देश जो है वो बच गया। We need such a man today ऐसा मनुष्य हमें इसकी जरूरत है, who has a wisdom from God and God is with him. और जिसके पास परमेश्वर का बुद्धि है और परमेश्वर उसके साथ है। Amen. आमीन। So, what are you going through today? तो क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में? What is happening in your life that is not happened before? और क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में जो पहले कभी नहीं हुआ है? Everything was normal, your job was normal, you're going to come work, coming back home, going to church on Sundays. What happened suddenly? आपका साधारण जीवन जो है रोजमर्रा का जीवन जो है वो काम पे जाना, कलीसिया में जाना और घर पर आना, क्या हो गया इन दिनों में? Suddenly you are told your salary has been cut or you are losing your job. अचानक आपको संदेश मिलता है कि आपका पगार कट गया है, आपका नौकरी निकल गई है, Or there is no church this Sunday. और ये इस रविवार को कलीसिया नहीं है। Online church services been very popular these days. हम देखते हैं कि ऑनलाइन कलीसिया बहुत ही मशहूर हो गई है। Thank God for high tech and और इस टेक्नोलॉजी के लिए धन्यवाद देते हैं। hallelujah. At least we can speak to one another. और अच्छा है कि हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं। Just imagine Jesus' time with this happened. अगर यीशु मसीह के समय में ऐसा होता तो There would be no communication. तो कुछ भी उन लोग वार्तालाप नहीं कर पाते। So
The second point we are going to go to तो दूसरा मुद्दा हम देखेंगे, unprecedented catch of fish. और न सोचा हुआ कभी पूर्व में ऐसा मच्छी का पकड़ना जाल में। If you are troubled, there is a corporate atmosphere of negativity all around us. तो आपके इर्द गिर्द हम देखते कि बहुत सारा चीज जो है वो नकारक बातें चल रही है, People are speaking of negative things. और बहुत लोग जो है नकारक बात बोल रहे हैं। There's a Bible, the Word of God gives us hope. लेकिन पवित्र शास्त्र हमें आशा देती है। Hallelujah. हालेलुया। What a hope we have in Jesus. कितना अद्भुत आशा प्रभु यीशु मसीह में है। See, Peter knew Jesus before. देखो पतरस जो है वो प्रभु यीशु को पहले से जानता था, Jesus healed his mother-in-law also. और उसके सास को भी प्रभु यीशु ने चंगाई दी थी। Andrew introduced Jesus as the Messiah to Peter. और अंद्रिस ने पतरस को प्रभु यीशु के बारे में बताया कि वो मसीहा है। Not that Peter never knew about Jesus, और ऐसा नहीं कि पतरस को जानकारी नहीं था, but this encounter left him gasping for air. अब देखते कि उन्होंने उसको छोड़ दिया और बहुत निराशा था। So how did the catch of fish come? तो कैसा ये जो मच्छी पकड़ना शुरू हुआ? After Jesus speaking the word of God to the crowd, परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु ने जो प्रचार किया लोगों को, he talked to Peter. उसने पतरस से बात किया, Peter must have thought, at last Jesus is concerned about me. और पतरस ने सोचा होगा आखिर अभी प्रभु यीशु मेरे बारे में सोच रहा है। A carpenter speaking to a fisherman. और हम देखते कि सुतार जो है वो मछुआरे से बात कर रहा है। Peter was thinking, what does a carpenter know about a fish? तो पतरस सोच रहा होगा कि ये सुतार क्या जानता है मच्छी कैसे पकड़ना है। You know, Jesus created the fish. आप जानते हैं प्रभु यीशु ने मच्छी को उसकी रचना की है। Genesis 1:20 says, swarming, let there be swarming creatures. We don't read that. In the sea. Let there be swarming creatures in the sea. तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति का 1:20 उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कि बहुत सारे जो है जंतु हैं और मछलियां उस सागर में पैदा हो। Normally the fish bite the bait in the night. और साधारण रीति से हम देखते हैं कि मच्छी जो है रात में ही खाने का पदार्थ खाते हैं। But this is the morning now. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पतरस का कि वो सुबह का समय है The fish are gone. और सारे मछलियां गई हैं। What will happen now? अब क्या होगा? Your morning has come, beloved. आपका सुबह आ गया मेरे प्यारों। Maybe the night is gone, your tears, but the joy comes in the morning. शायद रात भर आप रोए होंगे, दुख मनाए होंगे, लेकिन सुबह आती है आनंद के साथ। You know, fish, Numbers 11:5, the Israelites said, we ate fish in Egypt. Fish was a staple diet in Egypt. तो हम देखते कि गिनती का 11:5 उसमें लिखा है कि उन लोग मच्छी खाते थे और मच्छी उनका जरूरी सामग्री था खाने के लिए। Genesis 1:28 says, we won't read the scripture, but it says, and he gave man dominion of the fish of the sea. तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति का 1:28 हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उसका पूरा अधिकार मनुष्य को दिया था Over the fish. उस मछली के ऊपर। And Jesus even paid the taxes to the fish. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जो कर जो मसूल जो है वो इस मछली के द्वारा ही भरा। Matthew 17:24-27. और मती का जो हम देखते हैं कि 17 उसका 24 से 27 तक। You know, Jesus said, who pays taxes? Strangers or children? तो प्रभु यीशु कहता है कि कौन कर बढ़ता है, पुत्र बढ़ते हैं या जो अनजाने लोग बढ़ते हैं। Yet that no one will be offended. He said, go take a hook and catch a fish. The first fish that comes, open his mouth and you'll find a coin.
take out the coin and go and pay the tax. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कहता है कि लेकिन फिर भी हम कर भरेंगे, जाओ और जैसे पहला मछली जो तुमको मिलती है उसके मुंह में एक सिक्का होगा, वो सिक्का ले लो और कर भर दो, महसूल भर दो। There were so many fish in the sea. तो कितने मछलियां सागर में होंगी। Peter caught the first fish. लेकिन पतरस ने पहला मछली पकड़ा The fish was said, "Catch me, catch me. और मछली कहता है मुझे पकड़, मुझे पकड़, I have the coin." मेरे पास वो सिक्का है। And how did the coin come in the fish? और कैसे वो सिक्का मछली के मुंह में आया है? Who threw the coin in the sea? किसने वो सिक्का नदी में डाला था, सागर में डाला था? It's all God's plan and God's ways, beloved. और ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का मार्ग है। Jesus has the authority or the fish or the land or all that is created. और प्रभु यीशु के पास सारा अधिकार है उस मछली पर, सागर पर और सारी चीजें जो उन्होंने बनाया है। That's why he said to Peter, "Put down your net for the catch." और इसलिए प्रभु यीशु ने पतरस को बोला अपना जाल बिछा दो उस सागर में, पानी And में। Peter is thinking, "Shall I do it? Shall I not do it?" और पतरस सोचता होगा कि मैं करूं या नहीं करूं। But he says to Jesus, "But at thy word I will cast the net." लेकिन पतरस प्रभु यीशु को कहता है तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। So all the nets that he was drying, I had to take back into the boat and launch it. It is hard work again. You must be tired all this night. हम देखते कि सारा जाल जो सूखने वाला था वो सारे जाल को लेकर वो सागर में उसी जगह पर, गहरी जगह पे गया। कितना मेहनत था, उसने पहले से मेहनत किया हुआ था। Unprecedented catch of fish. तो हम देखते हैं कि न सोचा हुआ पहले ऐसा उन्होंने मच्छी को पकड़ा। Peter was shocked himself. और हम देखते हैं कि पतरस खुद अचंभा में रह गया। He never seen such a catch of fish. और उसने कभी ऐसा भरपूरी जो मछली पकड़ा है जाल में, ऐसा कभी देखा नहीं था। That too in the morning. और वो भी सुबह के समय। At one time. और एक समय पर, एक ही बार। He said to Jesus, और उन्होंने प्रभु यीशु से कहा "Depart from me, मुझसे दूर हो जा, because I am a sinful man." क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। You know, when God works in unprecedented ways, the encounter itself gives us a new picture of Jesus. तो जब परमेश्वर जो ऐसा स्थिति है जब हमने सोचा नहीं, जाना नहीं, ऐसे जगह पर प्रभु यीशु आता है तो परमेश्वर महान चमत्कार करता है। Beloved, an unprecedented catch is coming to your life. अब हम प्यारो, हम देखते कि न सोचा है न जाना है ऐसा तुम्हें पकड़ मिलेगा जीवन में। Unprecedented harvest in the church. और भरपूरी जो है Hallelujah. हविष्य जो है वो आपके जीवन में आएगा। And unprecedented love and joy and all that you need for life and godliness. और हम देखेंगे कि आपके जीवन में न सोचा हुआ न जाना हुआ प्रेम और शांति और जो भी जरूरत है वो आपको मिलेगा। What is unprecedented? Again, I want to emphasize this word. क्या है वो जो नहीं सोचा है न जाना है पहले से? You know, take this story of Zacharias and Mary. तो हम देखते कि ज़करिया और मरियम का जो कहानी है, Angel came to Zacharias and told him, "You will have a son." और स्वर्गदूत आया और ज़करिया को कहा कि तुझे एक पुत्र जनेगा You will call his name John. और उसको आप यूहन्ना बोल के कहना। Your prayer has been heard. आपके प्रार्थना सुनी गई है। Zacharias never believed in their angel. और ज़करिया ने कभी उस स्वर्गदूत को विश्वास नहीं किया। He had the precedent to believe the angel because Abraham was old and had a son. और उस ऐसा विश्वास कर सकता था पहले, क्योंकि ऐसा हुआ था अब्राहम को भी पुत्र बहुत सालों के बाद हुआ था। But Mary had an unprecedented visitation. तो हम देखते कि मरियम को एक न सोचा हुआ जाना हुआ ऐसा स्वर्गदूतों का भेंट हुआ। Angel said, "That which is in your womb will be conceived by the Holy Spirit." और
स्वर्गदूतों ने कहा कि जो तुम्हारे गर्भ में होगा वो पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा होगा। Never had a child been born without physical. हम देखते हैं कि कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि बिना शारीरिक एकता से जो बच्चा पैदा हुआ है। Yet she said और फिर भी मरियम ने कहा in Luke 1:37, "Be it done according to your word." और लूका का 37 में लिखा है कि वैसा ही हो जैसे आपका वचन है। Lots of words are going to come from heaven to you, beloved. और प्यारो बहुत सारे वचन आपको स्वर्ग से उतर कर आएंगे। What no eye has seen, your ear has heard, what is or entered the heart of man, what God is promising to them who love Him. और न आंखों ने देखा है, न कानों ने सुना है, न चित्त समझ सकती है जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है जो उनसे प्यार करता है। You know, when Joshua stopped the sun, और हम देखते हैं कि यहोशू ने सूर्य को थम दिया the battle was going on. और वहां पर युद्ध चालू था It became dark. और वो अंधेरा छा गया था। To finish the battle, the sun needed to be there. They needed light. और उस युद्ध को पूर्ण करने के लिए रोशनी की जरूरत थी और सूर्य नीचे आ रहा था। So Joshua said, "Sun, stand still." और यहोशू ने कहा सूर्य थम जा। Hallelujah. हालेलुया। You know, what has not happened before will happen these days. और जो कभी हुआ नहीं है पूर्व में अब होगा इन What you दिनों have में। not experienced before, what you have not seen before, you're going to see these days. और कब आपने अनुभव नहीं किया है या कभी देखा नहीं है वो बातें इस समय होगा। Only be expecting and believe when the word comes to you. और लगातार अपेक्षा रखो और अगर वचन आए तो उस पर विश्वास ठहराओ। Many examples I can give you. और बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ In the New Testament, नया करार में। I guess gave you the example of Mary. और आपको मैं मरियम के बारे में बताया। What about the woman who had an issue of blood? He said, "If I touch his garments, I will be healed." तो वो औरत जिसको लगातार लहू बह रहा था उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। Who told her that? किसने कहा उसको Touch his garments, you'll be healed. कि उसके वस्त्र को छू ले और तू चंगी हो जाएगी? It must be a revelation from heaven. और ये नकी जो है स्वर्ग से प्रकटीकरण था। Normally we do things what we see other people do. और कभी कभी हम ऐसा करते हैं जो दूसरों करते हैं वही हम लगातार करते हैं। But this lady never seen such an example. और ये औरत ने कभी ऐसा उदाहरण देखा नहीं था। So a lot of things are going to happen these days, beloved. तो बहुत सारी चीजें होंगी मेरे प्यारो इस And दिन last में। I want to say, the third point is unprecedented call and commitment. और आखिरी तीसरा मैं मुद्दा बताना चाहता हूँ कि न सोचा हुआ कभी भी पूर्व में ऐसा बुलाहट। And Jesus told Peter, "Now I'll make you fishers of men." और प्रभु यीशु ने पतरस को कहा अब मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। Amen. आमीन। You know, the same way Jesus was saying, you saw the catch of fish, you're going to see that in your ministry. और प्रभु यीशु पतरस को कहता है कि जैसे तुमने मच्छी को देखा जाल में फंसते हुए वैसे ही तुझे मनुष्य को आप देखेंगे। The same principle. वही सिद्धांत। And on the day of Pentecost, so many thousands were saved. और हम देखते कि पंतेकोस्त दिन में बहुत सारे आत्माएं पतरस जीतता है। What they never saw before, they had a harvest full and ripe of 5,000 तो हम देखते men and women. कि कभी न देखा हुआ जो लोग हैं वो परमेश्वर ने उनको आत्माओं को बचाया। 3,000 5,000। Amen. आमीन। Beloved, we're going to see a great harvest this coming year. हम बहुत सारा जो है फसल देखेंगे इस साल में। Jesus gave them direction for life. और प्रभु यीशु ने उनको मार्गदर्शन दिया
जीवन के लिए। And they shared their catch with James and John, the son of Zebedee. और हम देखते हैं कि पतरस ने याकूब से और यूहन्ना से उस मच्छी को बांट लिया। And there was no lack of fish, there was lack of nets. हम देखते हैं कि मच्छी का कमी घटी नहीं थी, लेकिन जाल की कमी घटी थी। Get your net ready आपका जाल तैयार करो for spiritual blessing, आत्मिक आशीष के लिए emotional blessings, और भावनात्मक आशीष के लिए and physical blessings. और शारीरिक आशीष के लिए। Be ready to sell, share with others. और तैयार रहो कि तुम दूसरों से बांटे। Jesus finally stamped Peter's call in a new way. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने एक अलग तरीके से उसका पतरस का बुलाहट को मोहर दिया। Beloved, Jesus is your source. प्यारो जानो कि प्रभु यीशु आपका सोता है। He is your source. वो आपका सोता है। He is your peace, He is your joy. वो आपका शांति है, आपका आनंद है। In the Old Testament, there is a story. और पुराने करार में एक कहानी है। The people who are tired of eating manna every day. और लोग जो है उस वीराना में बहुत ही थक गए थे वो मन्ना खाते हुए। They wanted meat. उनको मांस चाहिए था। How many want meat? Okay. कितने जन को मांस चाहिए? Non-veg. जो शाकाहारी है। Because they have tasted in Egypt all the fish and the delicacy, onions, cucumbers, garlic. तो सब जो स्वादिष्ट चीजें उन्होंने खाई थी मिस्र देश में, मच्छी और जो लहसुन है, कांदा है और काकड़ी है। And Moses was frustrated. और हम देखते हैं मूसा जो है परेशान था। He said, "Where I will get meat? मैं कहाँ से ये मांस लेकर आऊं? If I carry all the cattle even slaughtered, there won't be enough meat." तो जो भी सब सारे भेड़ बकरियां भी उनको मार डालेंगे तो भी उतना नहीं मिलेगा सबको। Even all the fish is fish in the ocean or the Sea of Galilee or whichever ocean was there. It won't see sufficient to feed all the Israelites. तो कितने भी मच्छी जो है उस गलीली के जो नदी में या जो भी वहां पर सागर था वो कम गिरेगा उनको। हाँ। So Moses was saying, "Lord, what are you going to do?" तो मूसा कहता है कि क्या What are you going to do? मूसा कहता क्या करेंगे हम? God has the answer. लेकिन परमेश्वर के पास उत्तर था। What they never thought of, God gave them. जो उन्होंने सोचा नहीं वैसा परमेश्वर ने उनको दिया। You read this in Numbers 18. और गिनती के 18वां अध्याय में आप पढ़ेंगे उसको। Read the chapter. वो पूरा अध्याय पढ़ो। So God gave them quails from heaven. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको बटेर दिया स्वर्ग से। He sent a strong wind और उन्होंने एक जोर की हवा भेजी and gave them quails from heaven और उन्हें स्वर्ग से बटेर दिया till it came up to their nostrils. और इतना भरपूरी दिया कि उनको नाक में दम आ गया। Hallelujah. हालेलुया। So we want to summarize again. तो हम उसको फिर से दोहराएंगे Don't give up. कि हार नहीं मानना है। God is your source. परमेश्वर आपका सोता है। Unprecedented circumstances, और न सोचा हुआ न जाना हुआ परिस्थिति that we are going through, जो हम उस परिस्थिति से जा रहे हैं, Christ is with you. प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ है। He is going to give you an unprecedented catch. वो आपको न सोचा हुआ ऐसा पकड़ देगा। And last point, unprecedented call and commitment. और हम देखते हैं कि आखिरी का मुद्दा है न सोचा हुआ ऐसा बुलाहट और कमीशन। Peter left everything, forsook all and followed Jesus. तुम देखते हैं कि पतरस ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर
प्रभु यीशु का पीछा किया। When you meet Jesus, beloved, और अगर आप प्रभु यीशु से मिलेंगे then everything becomes secondary. फिर सब कुछ दूसरा दर्जा लेता है। He left the fish also और उसने उस मछलियों को भी छोड़ दिया and followed after Jesus. और प्रभु यीशु का पीछा किया। Jesus later on comes when Peter was fishing again. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु फिर से आता है जब पतरस मच्छी पकड़ने जाता है And he says, "Children, have you any meat?" और वो कहता है कि बच्चों तुम्हारे पास मांस है क्या? And they don't catch anything. और वो कुछ भी उनके पास नहीं पकड़ा था। And he tells Peter to cast the net on the right side. हम देखते हैं कि पतरस को दाएं साइड पर वहां पर जाल बिछाने कहता And है they catch 153 fish. और हम देखते हैं कि 153 मच्छी वो पकड़ते हैं And Jesus is waiting on the shore with coals of fire and bread. और हम देखते हैं कि वहां पर जो नदी किनारे प्रभु यीशु जो है कोलसे का आग बनाकर उनका राह देख रहा है And he feeds them breakfast. और उनको वो नाश्ता खिलाता है। Hallelujah. What a good Jesus we have. हालेलुया, कैसा प्यारा प्रभु यीशु है। That launched Peter again. And he was the one who preached the gospel on the day of Pentecost. हम देखते हैं कि पतरस को फिर से उन्होंने मच्छी पकड़ने के लिए कार्य किया, लेकिन हम देखते हैं कि पेंटिकॉस्ट के दिन में पतरस क्या करता है। Jesus' love is our source, beloved. हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का प्रेम हमारा भाग है जीवन का प्यारा, And our peace, the God-given peace. और परमेश्वर का दिया हुआ शांति है। We're going to pray now. हम भी प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you this morning. पिता, हम धन्यवाद देते इस सुबह के लिए। Even though we go through unprecedented circumstances, अगर हम ऐसे ही परिस्थिति में जा रहे हैं जहाँ पर हमने कभी देखा नहीं है, we'll remember one thing: you are with us. हम एक चीज याद रखेंगे प्रभु कि We आप have हमारे your- साथ हैं। We have your word, Lord Jesus. प्रभु आपका वचन हमारे साथ है They'll bring us everything for life and godliness. और वो सब कुछ हमारे जीवन में लाएगा जो हमारे पवित्रता के लिए है। And we thank you for the call and commitment. और हम आपका बुलाहट के लिए और जो विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं। That encounter we have with you, Lord, प्रभु जो तुम्हारे साथ आमना सामना हो रहा है प्रभु, will lead us to keep you in preeminence in everything. और प्रभु वो हमें मार्गदर्शन देगा कि आपको हम पहला जगह देंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Bless those who are hearing, Lord, प्रभु हर एक को आशीष कर जो सुन रहे हैं that they will receive hope this morning. कि आज सुबह वो एक आशा उनके अंदर तैयार होगा They'll see what they have not seen. और वो बातें वो देखेंगे जो उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। They'll hear what they have not heard before. प्रभु ऐसी चीजें वो सुनेंगे जो कभी उन्होंने सुना नहीं, And they'll do what they have not done before. और वो ऐसे कार्य करेंगे जो उन्होंने कभी किया नहीं है। May the anointing reach them. प्रभु आपका अभिषेक उन पर आ जाए प्रभु। Bless their families today. उनके परिवार को आशीष कर आज प्रभु। Restore all that is lost, Lord. प्रभु जो कुछ खोया हुआ है प्रभु उनको पुनर्स्थापित कर प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में करते हैं। Amen. आमीन।